evening, all of you. Welcome. Good evening. Welcome to the session. We have our guest, Dhwani. Just welcome her. Hello, Dhwani. Good evening. Hello, sir. Good evening. How are you? I'm good, good. Welcome. Hello, sir. I hope I'm audible to you. Yeah, sir. You are audible. I am audible? Yeah. Yes, yes, very clear and audible. And nice to see you. Nice to meet you, sir. Sorry, sir, I couldn't come there. No, no, no. It's a pleasure welcoming you, always smiling and very energetic. That has been your key feature throughout. Obviously, sir. Ah, great, great. So, as the exams are around the corner, as you are aware, chartered Yes. accounts exams are just next month. So, we thought we'll have a session and get some guidance to the students right from their Gen X, Gen Z, whatever generation you call it. So, right from you will appeal to them more than we telling, because when we say they feel, अरे ये सर को तो काम धंधा नहीं ऐसे ही बोलते रहते हैं करने का ये करने का ambitious रखने का but I think your words and your tone and temperament will match them. Yeah, sure, sir. I would love to address them actually about about the CA exams actually, because it's recent and I am, new CA chartered accountant. So I think I would be, very much like I will be able to, address them properly, I guess. I hope. Yeah. Yeah. नहीं नहीं यार मतलब when we were discussing about this session, your name came into our mind first, saying yes, we'll get you on board and listen to you from as to what exactly should be the last moment preparation. Yeah. So that was the main key feature there. But before we start, just a small short introduction about yourself will really help. Yeah, sure, sir. So, yeah, hi everyone. I hope like CA students have joined the session. So, this is CA Dhwani Satra, and I would like to address you about the CA, like how to tackle these exams. एंड लाइक कैसे हम लोग को प्रेजेंट करना है एग्जाम्स में बाद में एंजाइटी एंड एवरीथिंग आई वुड लाइक टू एड्रेस यू एंड Correct. आई वुड लाइक टू थैंक यू शिवा सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल. And I welcome. Uh, she is a fresh chartered accountant in the latest examination, so she has a lot of fresh ideas how to prepare in the last 1 month, how to prepare in the last 24 hours, then last 12 hours, 6 hours, 1 hour. So that strategy she has in plenty. So we'll not waste much of time. So I think first let us start with how should one prepare in the last 1 month's time. That's more relevant since almost a month is left now. Yeah. So, like, assuming that everyone has been done with their first revision, because since only like less than 1 month is remaining for the exams right now. Correct. And yeah, I would be expecting that everyone is in their, like first or second revision right now. सो आई वुड लाइक अभी कैसा है लाइक अभी एक बार तो फर्स्ट रिवीजन तो हो ही जाता है, तो सेकंड रिवीजन में ऐसा है कि वी जस्ट डू द इम्पोर्टेंट वंस जो हम लोग ने स्टार मार्क किया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जिसने भी अभी आई नो दैट अभी तो बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम्स के लिए. सो अभी वी कैन डू इज लाइक जैसे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं हम लोग स्टार मार्क कर सकते हैं. दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल ड्यूरिंग दैट 24 आवर्स ड्यूरिंग बिफोर दैट एग्जाम. 24 आवर्स देन 6 आवर्स. तो जो भी इम्पोर्टेंट है लाइक इन लॉ सेक्शन नंबर्स इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट इन लॉ वी कैन से दैट प्रोविजंस जो भी हम लोग को टफ लगता है, बाद में इंडेस के नाम ऐसी एंड एवरीथिंग जो हम लोग को लगता है कि हाँ ये आने ही वाला है एग्जाम में, तो दैट शुड बी स्टार मार्क जो स्टार्टिंग से लाइक हम लोग जब फर्स्ट रिवीजन करते हैं तब से स्टार मार्क होना चाहिए. एंड ड्यूरिंग आवर फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन वो स्टार मार्क वाला इट शुड बी गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. We say now that ABC analysis we do in costing,
Yeah, so हाँ ABC, yeah, so ABC is like we can apply here also. So A correct. and AB, yeah, I know that ABC is very common in our CA course also, but according to me, ABC is like A में हम लोग I just give the priority to the topmost priority, and ऐसा नहीं कि B and C I ignore. B and C is also utmost important. It's not like कि it's not important. A, but it's like कि A वाला जो है वो एग्जाम में आता ही है. Like we know we can predict the paper, right? Like by seeing the past papers, by seeing the MTP, RTPs, and everything, we can predict. So according to that, we can first of all star mark the important questions, and afterwards, like give importance to B and C. So Correct. I followed this strategy during my CA preparation exams. Like first I gave importance to A category. A category means like for example in CA final if you take tax subject. So in tax we know that 14 marks का PGBP तो आना ही है first question. So it's like कि PGBP तो it's at most important. Like depreciation का depreciation का अपना adjustment वो आता ही है. So yeah, star mark that. वी नो तो तभी के तभी वी नो कि हाउ टू कैसे हम लोग मार्क्स ला सकते हैं. सो वैसा मैंने पूरा Correct. स्ट्रैटेजी अपने सीए में पूरा यूज किया था कि कैसे करना है एंड कैसे नहीं. एंड बी और सी कैटेगरी देखा जाए तो इट्स लाइक थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट तो उतना ही था बट इट्स लाइक कि थोड़ा स्टार मार्क नहीं था बट एग्जाम के वक्त इट वाज लाइक कि 2 या 3 बार रिवीजन हो गया था बट इट्स लाइक एग्जाम के वक्त इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू सी बिकॉज जितना ए इम्पोर्टेंट है. Correct. सो या तो वैसे वी कैन अभी सीए स्टूडेंट्स मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं अभी अभी तो लास्ट लेस देन 1 मंथ में ये तो अभी इम्पोर्टेंट ही है कि हम लोग इम्पोर्टेंस में ही ध्यान दे. लाइक इट्स रैदर स्मार्ट वर्क करे रैदर देन हार्ड वर्क. करेक्ट. जो लोग का समझो एक रिवीजन भी नहीं पूरा हुआ है तो वो लोग क्या करना चाहिए? ओके सो एक ऐसे भी रिवीजन कुछ सर. लोग रहेगा बोला एक सर रिवीजन मेरा भी ही मेरा नहीं हुआ. सर वो मेरा ही खुद का एग्जाम्पल देती हूँ सर. मेरा खुद का एग्जाम के वक्त एक रिवीजन भी नहीं हुआ था. कैसा हुआ था कि आई वुड लाइक टू शेयर माई जर्नी ऑल्सो. कैसा था कि सीए फाइनल्स के वक्त आई गॉट द लीव फ्रॉम माई ऑफिस एंड आफ्टरवर्ड्स आई मैंने सोचा कि मैं दोनों ग्रुप साथ में दे दूंगी बट इट वॉज लाइक कि दोनों ग्रुप पॉसिबल नहीं हुआ ड्यू टू सम मेडिकल इमरजेंसी बट मैंने एक ग्रुप दिया. तो एक ग्रुप दिया दैट इज ग्रुप 2 फर्स्ट एंड तभी तो ठीक है आई गॉट दी टाइम सफिशियंट टाइम टू प्रिपेयर. सो या तो ग्रुप 2 तो निकल गया. बाद में जब रिजल्ट आया एंड मैंने ऐसा सोचा कि वेकेशन अभी है तो आई डू ग्रुप 1 करके बट या मैंने बुक को हाथ भी नहीं लगाया था जब तक रिजल्ट नहीं आए थे. बाद में जब रिजल्ट आया उसके बाद मैंने ये किया लाइक ग्रुप 1 को हाथ लगाया. ग्रुप 1 का मेरा सर मैंने एक भी बार पढ़ा नहीं था. इट वॉज वेरी न्यू टू मी. मैंने बुक को हाथ भी नहीं लगाया था वो ड्यूरिंग पहले भी एंड कुछ भी. इट वॉज वेरी न्यू टू मी. इट वॉज लाइक फर्स्ट टाइम रीडिंग और फर्स्ट टाइम स्टडिंग ऑफ माई ग्रुप 1 सब्जेक्ट. सो वो भी मैंने ऐसा प्रिपेयर किया जैसे मैंने बोला एबीसी एनालिसिस जो जो टॉप मोस्ट था पहले वो किया. बाद में ऐसे ऐसे ही करती गई पूरे वो 2 महीने में. एंड जो ग्रुप 2 का रिजल्ट था वो आई गेस 13 सितंबर को आया था एंड दिसंबर में ही एग्जाम था अपना. सो बहुत कम टाइम था कि पूरा. एंड ऑब्वियसली लाइक पूरा ग्रुप 1 इज वेरी वास्ट. एफआर एंड ऑडिट वी नो इट्स वेरी वास्ट. सो पूरा लाइक खत्म करना वो भी 2 मंथ्स में इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क इन इटसेल्फ. बट मैंने ऐसा सोच लिया था कि नहीं करना तो है ही. तो पूरा एक बार एटलीस्ट एक बार कर लिया और बाद में ऐसा कि जो होगा देखा जाएगा. सो इट्स लाइक कि अगर एक फर्स्ट टाइम भी अभी रिवीजन चल रहा है ना सो इट्स जस्ट लाइक कि डू जस्ट इम्पोर्टेंट वंस एंड जो नहीं हो रहा है जो टाइम नहीं आ रहा है या कुछ भी एटलीस्ट आपके नीचे से गो थ्रू होना चाहिए वो. लाइक अभी सीए आईसीए इज अनप्रेडिक्टेबल वी नो. सो Correct. कुछ भी Exactly. इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. सो वी कांट नो लाइक वो क्या पूछ सकता है क्या नहीं. अभी तो ऐसा हम लोग को लगता है कि ये बहुत इजी है ये तो एग्जाम में आएगा ही नहीं बट या वो एग्जाम में आ ही जाता है. Correct. सो या इट इज जस्ट दैट कि वो गो थ्रू करना चाहिए. बी और सी जो है पार्ट ए तो ऑब्वियसली करना ही है और बी और सी इट्स लाइक कि एटलीस्ट गो थ्रू होना चाहिए. तो मतलब ये I summarize what Dhwani has said. More of like जो आपको लग रहा है कि from the past paper RTP जो भी या आपने जमा किया है तो in that you'll come to an idea कि there are certain things which is very 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 important. तो उसको you will read more number of times, maybe like 5 times, 6 times, 10 times. The number of times will be more.
एंड बी सी को यू हैव टू रीड maybe little less. maybe उसको ए ग्रुप ए वाले को 10 times रीड कर दिया तो बी को यू मे रीड around 5 times 6 times. सी को यू मे रीड some 4 times. मतलब Yeah, रीड तो करना ही है. So let us yeah, not misunderstand कि सी मतलब उसको रीड ही नहीं करना है, ऐसा नहीं बोल रहे. Very correctly she mentioned कि सीए का papers are difficult to predict. So but importance wise you have to classify किसको मैं ज्यादा टाइम रीड करूंगा, किसको थोड़ा कम, किसी को और कम. That yes, classification आपके पास रहना चाहिए. That is the yeah. main summary of it. And as we all agree, this is an examination which will obviously create that stress. So let us not deny the fact कि नहीं मेरे को stress ही नहीं होगा, मुझे anxiety नहीं होगा. I think there is no denying on that. That's what is. नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. एक्चुअली एग्जाम के वक्त ही लोगों को तब बुखार आ जाता है, या इट्स लाइक वेरी, क्योंकि एग्जाम के फियर की वजह से ही बुखार आ जाता है. एंड ये तो सबके Correct. साथ होता है, एंड इट इज वेरी कॉमन राइट नाउ. एंड मुझे अभी भी याद है आईपीसीसी के एग्जाम के वक्त, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट जिसमें मेरा बीपी बढ़ गया था. सो इट इज वेरी लाइक कॉमन ड्यूरिंग द एग्जाम. सो या उसकी वजह से हम लोग डर के तो नहीं बैठ सकते, हम लोग को तो एग्जाम देना ही है एट द एंड. Correct. सो So well, let us accept the fact that yes, stress may be there. So nothing wrong, nothing very different happening with you. It happens with everybody. विथ Anybody who is एवरीबडी. giving an examination, and that to such a big examination, these are bound to happen. So no stress. There is a stress करके. Stress आ रहा है करके stress मतलब it's normal. इट्स Let's be नॉर्मल. normal. And, it's normal to be like that. ठीक है, that is one another important thing. And before we move on to further strategy, another thing like which I would like to get from you directly, कि any specific ऐसा बोला ना diet या exercise या some activity या stress buster या something like which you used to do, ऐसा कुछ है, सर फ्रैंकली ऐसा कुछ आपने. स्पीकिंग, नहीं, मैंने कुछ डाइट वाइट कुछ फॉलो नहीं किया था. इट्स लाइक कि घर पे बैठ के ना भूख बहुत लगता है. मतलब पढ़ाई करते आपने करते ना बताया. टेंशन में बहुत भूख लगता है. एंड एक्चुअली उसकी वजह से वजन भी बढ़ गया है फाइनल. यू आपको बराबर. मेम भी पता रहेगा सीए स्टूडेंट में, लाइक बिफोर एंटरिंग टू सीए कोर्स एंड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द सीए, लाइक वजन बढ़ जाता है. इट्स बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बराबर. लाइक टेंशन एंड एवरीथिंग. तो खाना इज लाइक बहुत जाता है. बट आई कैन से Correct. दैट ड्यू टू लाइक कैसा है कि मेरा स्ट्रैटेजी कैसा था कि मैं थोड़ा मतलब मैं मॉर्निंग को भी नहीं पढ़ती थी, शाम को भी नहीं पढ़ती थी. मेरा बीच का टाइम होता था. लाइक आई नो कि मेरा इफेक्टिव टाइम क्या है पढ़ाई का. फर्स्ट ऑफ ऑल तो Correct. वो सब जो सीए स्टूडेंट्स है, जो भी कोई भी स्टूडेंट्स है, उनको पहले खुद का इफेक्टिव टाइम जानना है कि वो लोग कब पढ़ सकते हैं. मैं बेस्ट मेरा बेस्ट बोलूँ तो परफॉर्मेंस कभी आ जाता है. या एंड मेरा बोलूँ तो मुझे लीव नवंबर से मिल गया था. बट मैं हमेशा अलार्म लगाती थी 6 बजे, बट कभी 6 बजे उठी नहीं हूँ. इट्स लाइक कि मैं 9-10 बजे उठती थी, बिकॉज मुझे पता है कि आई वर्क, आई नो कि मेरा 9-10 बजे के बाद ही पढ़ाई अच्छे से होना है, वो भी शाम के 6-7 बजे तक. एंड इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर मी. या सो ऐसा मैं पढ़ती थी पूरा लाइक फर्स्ट इट्स लाइक कि पहले अपना इफेक्टिव टाइम जान लो, कितना पढ़ाई कर सकते हो, कैसा है. एंड जो भी फ्री टाइम बचता है ना, उसमें आई यूज टू वॉच सीरीज. लाइक कैसा है, एक कोई सीरीज आया है तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देख लो, लाइक ड्यूरिंग लंच और ड्यूरिंग थोड़ा माइंड काम करने. आज अभी हैवी सब्जेक्ट हो गया, तो इट्स लाइक कि बाद में शाम को थोड़ा रिलैक्स करो. लाइक ऑडिट है या एफआर है, तो इट्स लाइक कि पूरा डे हेक्टिक जाता है वो करने के बाद. तो थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा तुम लोग आराम से सीरीज देख सकते हो, या नीचे शाम को वॉक कर सकते हो. तो Correct. वैसा मैं या तो. एंड रात को सोने के वक्त भी ऑब्वियसली थोड़ा हम लोग को थोड़ा ऐसा नींद नहीं आता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एवरीथिंग. वी जस्ट थिंक लाइक नहीं, मुझे कल उठ के ये पढ़ना है, वो पढ़ना है. तो उसके बजाय इट्स लाइक कि आप कोई एक सीरीज देख लो जो कॉमेडी सीरीज है, जिसको जो पसंद है वो. तो दैट वी कैन पूरे दिन में वी कैन सी दैट. एग्जाम्स के वक्त तो बिल्कुल नहीं, एग्जाम्स के वक्त का नहीं बोल रही हूँ, बट इट्स लाइक अभी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम. Correct. Some relaxation in the या form of walking or some, as you had some, you can say favorite, some 10-15 minutes comedy देख लिया. Whatever is your relaxation point वो कर लो. And अपना जो peak time पढ़ने का है वो decide कर लो. उसको routinely follow करो. That's very very important. And जैसा बोला कि yes, बुक ज्यादा लगता है जब भी हम करते हैं. No doubt about it. Only thing is that जहाँ तक होगा we prefer to eat what is prepared at या home.
I think या that much प्रॉपर we डाइट will have या to. यस यस ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम लोग घर पे ही है पूरा दिन तो इट्स लाइक कि टू अवॉइड बाहर का फूड ड्यूरिंग द एग्जाम्स फर्स्ट ऑफ ऑल Correct. एंड लाइक घर पे जो बना हुआ वो एग्जाम्स के वक्त खाया तो पता नहीं कि बीमार पड़ जाए तो मतलब हाँ, हम लोग को रिस्क ही नहीं लेना है correct. या Exactly. So that is very important कि healthy food मतलब तो घर में जो बनता है वो खाना बराबर से खा लीजिए. And I think जितना मैं अपने टाइम पे करता था, we used to have multiple instead of at one point ज्यादा खा लिया वैसे नहीं करते थे. नंबर ऑफ मील्स वुड बी मोर कि हर 2 घंटे में खा लिया या 1.5-2 घंटे में कुछ ना कुछ स्नैकिंग कर लिया रादर देन एक साथ खा लिया और बोला अभी नींद आ रहा है खाने के बाद. So that we used to avoid very consciously. Maybe. अभी भी That, इट्स that लाइक कि अभी भी हम लोग कैसा है ना सर अभी का जनरेशन जो है ना लाइक वी लाइक मैं फ्रैंकली बोल सकती हूँ बिकॉज आई लव जंक फूड तो सब लोग मुझे भी पता है अभी भी जंक फूड खाते रहेंगे लाइक हम लोग का जो जनरेशन है दे लव जंक फूड so it's like yeah correct, you can eat junk food but it's like just control because during exams we just can't take the risk correct. That's yeah absolutely right. And क्या बोल रहे हैं? And also it is very important to keep oneself very motivated throughout the. obviously motivation That, motivation is the biggest word like for the CA student correct, I mean during my preparation now for motivation I used to listen the songs like correct, that I would suggest like 2 3 songs one is Lakshya we all know that it's a very motivated song and the second is वो अभी माना के मुश्किल है सफर it's my one of the favorite song and that kept correct. me going that kept me going Great, great. and yeah and I mean मैं जो ग्रुप 1 जब मैं ग्रुप 1 के प्रिपरेशंस कर रही थी it was very demotivating for me because I just said before it was very मतलब बहुत कम टाइम था मेरे पास मतलब टाइम भी नहीं था बिकॉज फर्स्ट रिवीजन भी बाकी था एंड ऐसा सब था बट मैंने वो सॉन्ग सुने लाइक मोटिवेशन किया एंड लिटरली दैट हेल्प्स लाइक सॉन्ग सुनना या जो भी हम लोग को लगता है लाइक मोटिवेटर से यूट्यूब पे भी मोटिवेटर के बहुत सारे यूट्यूब ये है लाइक वी कैन हियर Correct, दैट तो वो जिसको जैसे मोटिवेशन मिलता है दैट इज द इम्पोर्टेंट तो सॉन्ग सुनना मैं हर रोज मैं लूप पे रखती थी वो सॉन्ग्स लाइक आई यूज्ड टू जब प्रैक्टिकल सम्स करते थे या जब भी सुन सकते हैं जब सॉन्ग्स सो आई यूज्ड टू प्ले दैट सॉन्ग्स इन अ लूप सो वो सॉन्ग्स ने बहुत हेल्प किया है मुझे ड्यूरिंग माय correct. ग्रुप 1 प्रिपरेशंस But yeah, that's what is very important. Like क्या बोलते हैं, to keep oneself motivated is as important as keeping oneself बोला ना hydrated. डिहाइड्रेशन में नहीं जाना है. ग्लास या बॉटल पानी रखो साथ में थोड़ा थोड़ा सिप करते रहो. पानी कॉन्शियस कि भाई ये पानी पीना जितना इम्पोर्टेंट है उतना मोटिवेटेड रहना भी मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है. obviously yes it is Yeah. So you have to really have those people who have gone through challenges which you would have seen in your family or friend circle, whatever form of challenges they would have had. That is a big motivation which you can draw an inspiration or anyway जैसा आजकल तो क्या बोला Google and is so famous with so many things. So but Mo- yeah uh, I always personally I related to people in my circle only. मेरे दोस्त है या मेरे कलीग्स हैं. I always get inspired by them, motivated by them. Maybe I have some moments where things are not going as required. So अच्छा that's how I do it. And of course, I have been very fortunate to have some great teachers in my life who made my life simple. ऑब्वियसली सर अभी तो कैसा है कि अभी अभी तो सब कोचेज एंड क्लासेस के वजह से तो अभी तो थोड़ा सीए के लिए लाइक अभी जो पढ़ाई है वो भी थोड़ा इट्स लाइक कि इट्स अ गाइड फॉर द सीए स्टूडेंट्स पहले तो आई Right. गेस वो भी नहीं होता था मैंने बहुत प्रोफेसर से सुना है बहुत प्रोफेसर मेरे प्रिंसिपल मेंटोर सबसे सुना है कि उनके वक्त तो क्लासेस भी नहीं होते थे so abhi to नहीं, classes hai everything we have like everyone to share their own stories and that itself is a biggest motivation for us correct. And like क्या बोल रहे हैं? What should one do 1 hour before exams? ऐसा. So let's
सब 1 hour बिफोर एग्जाम मैं बोलूँ तो कुछ नहीं करो. इट्स लाइक टू हाँ. जस्ट कीप काम. मैं कैसा करती थी जब एग्जाम डे रहता था, मॉर्निंग में उठो 5-6 बजे या आई मीन 5-6 बजे ऑब्वियसली नींद खत्म होने के बाद. और एल्स तुम लोग तो दोपहर को फिर एग्जाम भी लिखना है ना, सो इट्स लाइक कि 5 या 6 बजे उठो जैसे ही नींद खत्म हो जाए. उसके बाद हम्म. जस्ट मतलब थोड़ा पढ़ाई हो जाए 10 या 11 बजे तक, दैट्स इनफ. अगर हो गया है पढ़ाई, देन जस्ट कीप दैट असाइड. फुकट का स्ट्रेस लेके फिर बुक बुक ऐसे सिर्फ पेजेस घुमाना है, नहीं मेरी एग्जाम में नहीं पढ़ना ही है मुझे, तो दैट इज अननेसेसरी टेंशन बिल्डिंग अप. सो मैंने एग्जैक्टली. या एंड ऑब्वियसली अभी जिसके दूर सेंटर आते हैं वो लोग तो कैसे कि 12 बजे ही घर से निकलते हैं, 12:30 निकलते हैं. सो उनके लिए तो टाइम रहता ही नहीं है. सो मैं तो क्या मतलब मैं तो बुक को हाथ भी नहीं लगाती थी. सिर्फ या मतलब अदर देन फॉर्मूलाज जिसमें पढ़ना है, तो ऑब्वियसली वी हैव आवर नोट्स इन आवर हैंड. तो ठीक है, दैट यू कैन गो थ्रू, बट अदर देन आंसर रिकलेक्ट नहीं हो रहा है या वो रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बुक फिर से खोलना, तो दैट शुड बी अवॉइडेड लाइक ड्यूरिंग 1 hour बिफोर द एग्जाम. Yeah, exactly. So that should be the. Look, I just wanted to know from you because this is what I have been doing, like 1 hour, 2 hour before exam. तो मेरे घर से कुछ नहीं करना चाहिए. Like just relax and trust कि जो आपने इतना समय पढ़ा है, तो obviously that will help you more. And maybe 1 hour, 2 hour जैसा कुछ ऐसा glance कर रहे हैं summary, तो that's a different thing. But you can't या try to recall the whole thing and create that stress in you. समरी इज ओके, लाइक समरी कर रहे हो या फॉर्मूलाज कर रहे हो, दैट इज ओके. बट फिर से अगर सोच रहे हो कोई क्वेश्चन दिमाग में आया है एंड वो याद नहीं हाँ. आ रहा है एंड यू आर जस्ट बुक खोल के देख रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग. बिकॉज मतलब वो टेंशन और बिल्टअप होता है. अभी ऐसा एट द एंड, अभी एग्जाम डे पे ही हम लोग ने अगर सोचा कोई क्वेश्चन, अगर उसका आंसर नहीं आया, देन वी विल बी लाइक अरे मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, मेरा मैं क्या करूँ, एग्जाम देना है, मेरा आज एग्जाम है, कुछ आ ही नहीं रहा है. सो वो अननेसेसरी टेंशन टेंशन बहुत बिल्डअप होता है. तो उस Correct, exactly. या एंड फिर जो एग्जाम में आता भी रहेगा 3 घंटे में, तो वो भी नहीं आता है फिर. सो इट्स Correct, जस्ट perfect. दैट काम योर माइंड. मतलब एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले ही बुक्स वुक्स सब रख दो साइड में, एंड इट्स जस्ट दैट जस्ट मतलब थोड़ा प्रे करो, लाइक थोड़ा जस्ट काम योर माइंड, मेडिटेशन या एवरीथिंग, एनीथिंग, बट जस्ट डोंट टच योर बुक्स. Yeah, I think it's very important, as you mentioned, meditation is very, very important, and now so it is very crucial. And meditation need not be like specific also. Like personally, I have been helped a lot by meditation on Trinats करके है, 20 मिनट का meditation होता है. So that has helped me personally a lot. But even otherwise, आप meditation on Trinats नहीं भी करते तो it is 11, some 10 to 11 minutes of silence and just doing nothing. Just keep a timer for 10 to 11 minutes and do nothing and just observe your thoughts and emotions. I think that brings lot of clarity in या clarity, peace of mind, and uh, stress freeness, and that यस. motivates you also to a lot. You know, this is my personal experience. एंड सर Does अभी that? नाउअडेज नाउअडेज कैसा है ना, हर एग्जाम सेंटर में ना लाइक 1:30 को ही वी हैव टू कीप आवर बैग्स आउटसाइड. सो इट्स लाइक Correct. या एंड आफ्टर एट अराउंड 1:45 वी गेट आवर क्वेश्चन पेपर्स. So in those 15 minutes, like on those 15 minutes is like just calm your mind in those 15 minutes, like 1:30 to 1:45, just like I am a gujju, so I just do Navkar mantra. So that's very effective, and that's very that calms your mind. And it's very like Correct. yeah, just do your prayers or anything, but just don't think about the exam, how will it go and anything, like just don't. ऐसा है कि जस्ट पेपर आया, पेपर गया, बस. इट्स जस्ट लाइक जो होगा देखा जाएगा. हम लोग ने प्रिपेयर किया है, हमारा बेस्ट किया है, जो है वो होना ही है. लाइक इट्स लाइक कि हम लोग को वी नो दैट, ठीक है, लाइक किसी ने अगर प्रिपेयर नहीं किया देन दे नो ऑलरेडी देयर रिजल्ट्स, बट इट्स जस्ट दैट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड, इफ यू हैव गिवन योर बेस्ट इन दोज प्रिपरेशन टाइम, देन इट्स जस्ट दैट कि कुछ सोचो ही मत. बिकॉज इट्स लाइक वो ये जो फियर्स है आना, लाइक रिजल्ट क्या आएगा एंड पेपर कैसा आएगा, बिकॉज ये फियर्स इज वेरी कॉमन. मुझे भी फियर्स आते थे. मैं ऐसा सोचती थी शिट इसमें फेल हो गई तो इसमें मुझे जस्ट 40 आना ही है, ये मेरा सब्जेक्ट Correct. बहुत वीक है, ये मुझे जस्ट 40 नहीं आया तो
इसकी वजह से मेरा पूरा ग्रुप चला जाएगा, या वॉट एवर इट इज। तो उसके वजह से वी जस्ट थिंक एंड थिंक एंड थिंक, सो पूरा वैसा ही होता था कि लाइक यू जस्ट हैव टू काम योर माइंड इन दैट। Correct. Absolutely correct. That is very very important in that. Ki like that peace of mind at that last 15-20 minutes is very important to calm it down so that you are able to give your best या performance in that 2 hours time. Very correct. And as we all know, we have 1 day holiday before every exams. So, क्या any specific special strategy 1 day before exam? या सो लाइक कैसा है कि You ये come home by 4:35. समझो 5 बजे भी घर पहुंच गया. So you have सर 5 बजे तक तो 5 पेपर होता है सर, 5 बजे के बाद ही लोग आएंगे घर पे सर, 4:30 नहीं नहीं। sorry 6:30 sorry 7 o'clock. या There is सो no सर 11 to 12. राइट्स द 2 to 5 ना नाउ सो या अरे नहीं मेरे दिमाग में या सो सर, तो फर्स्ट पेपर कैसा है? फर्स्ट पेपर इज गोल्डन चार्म फॉर अस, बिकॉज वो 5 दिन तो हमें देता ही है एटलीस्ट। यू कैन अलोकेट मच टाइम, यू जस्ट आई मीन कितना भी टाइम यू कैन अलोकेट टू दैट पेपर, लाइक इन आईपीसीसी अकाउंट्स, देन सीए फाइनल में है, लाइक कौन सा है फर्स्ट पेपर? एफआर। देन FR. फाउंडेशन में भी है कोई फर्स्ट पेपर। सो वी FR. हैव सो वी हैव आर दैट हम लोग उतना जो फर्स्ट पेपर है उसको एक अपना बेस्ट देके लाइक एग्जामिशन भी ला सकते हैं, लाइक 5-6 डेज का वी हैव दोज डेज इन आवर हैंड्स। सो हम लोग उसमें इतना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड इट्स लाइक दैट विल बी द आई जस्ट कांट वो उतने जो डेज है ना, अगर वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया देन इट्स लाइक कि फर्स्ट पेपर अगर अच्छा गया ना देन इट्स लाइक अ पॉजिटिविटी टू अस, लाइक हाँ आगे के भी पेपर अच्छे जाएंगे। या सो फर्स्ट पेपर में इट्स लाइक अलोकेट एज मच एज यू कैन, लाइक जितना आप तुम लोग कर सकते हो अलोकेट, जितना लाइक 5 days या 6 days कितना अलोकेट करना है वैसे। एंड स्टडी प्लान तो ऑब्वियसली सबने बनाया ही रहेगा कि कितना फर्स्ट कैसे करना है, जो वीक है कोई टॉपिक में तो किसी ने वो बाद में रखा रहेगा, पहले रखा रहेगा, वॉट एवर इट इज। तो फर्स्ट पेपर तो है डेज। सो सेकेंड जब अभी फर्स्ट पेपर देके जब आता है लाइक घर पहुंच के 5-5:30 हो ही जाता है, तो समझो लाइक लोग लाइक स्टूडेंट्स हैं 6 या 7 बजे के बाद ही ऑब्वियसली प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज थोड़ा काम या ब्रेकफास्ट एंड वो सब के बाद ही। सो तब भी कैसा होता था तब भी कैसा होता था, अभी मैंने मतलब कैसा स्ट्रैटेजी यूज किया था कि जो इम्पोर्टेंट पहले तो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आना है, जैसे मैंने पहले बोला जो एग्जाम में आना ही है वो आई यूज टू डू दैट इन दैट हाफ डे। लाइक ऐसा है कि एटलीस्ट ये खत्म हो जाएगा या तो पूरा स्ट्रेसफुल थोड़ा निकल जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। सो उतने मार्क्स मेरे हाथ में है तो पहले ये कर लो अच्छे से, बाद में दूसरे में जाओ। एंड कभी मेरा तो अभी एक पेपर में ऐसा भी हुआ था कि मेरा शाम को पढ़ाई हुआ भी नहीं था, बिकॉज इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी कि इतना पढ़ाई हुआ भी नहीं था। मतलब अभी ग्रुप 1 का दिसंबर में एग्जाम था, तो तभी लॉ ऑडिट का पेपर लिखने के बाद सो मैंने 6 बजे मैंने सोचा कि मैं 6 बजे लॉ करने बैठूंगी, बट इट वॉज वेरी हेक्टिक बिकॉज ऑडिट के वक्त मॉर्निंग में ही मैं 5 बजे उठी थी, बिकॉज ऑडिट इज वेरी ऑलरेडी ऐसा सब्जेक्ट है जो बार बार करके ही भूल जाता है। तो ऐसा मैंने सोचा था कि मैं 5 बजे उठ के ऑडिट कर लूंगी तो पेपर खत्म हो जाएगा, देन आई डू लॉ। बट इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी कि लॉ मेरा हुआ ही नहीं वो दिन पे। लाइक पूरा वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पेपर देकर आए तो ऐसा हो जाता है कि एग्जॉस्ट हो गए पूरा दिन। सो इट्स फाइन, ऐसा नहीं कि नहीं हाफ डे गया या कुछ भी, ऑलरेडी हम लोगों ने प्रिपेयर किया है तो दैट्स ओके। इट्स जस्ट दैट वी आर डूइंग द रिविजन। सो अपने पास और एक दिन है, पूरा एक दिन है, तो उसमें मॉर्निंग जल्दी उठो, लाइक मॉर्निंग फ्रेशन अप एंड जल्दी उठो जितना जल्दी हो सके, एंड बाद में जस्ट प्लान योर डे। लाइक तुम लोग को कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टॉपिक हाथ में लेना है, लाइक जिस जो आना ही है पहले तो वो, बाद में तुम लोग जिसमें वीक हो या तुम लोग को वो करना है एक बार देखना है तो वो देख लो, और एंड में इट्स लाइक कि तुम लोग ऐसे कोई टॉपिक्स ले सकते हो जो इजी टॉपिक्स है, लाइक वैसा कि हाँ थोड़ा लाइट करने के लिए। तो वैसा पूरा वी कैन प्लान अ डे फुल 1 डे बिफोर द एग्जाम्स, वैसा कि मैंने वैसा पूरा प्लान किया था ऑडिट एंड लॉ के वक्त। तो करेक्ट, yeah exactly मतलब I used to follow the strategy of कि जो सबसे सिंपलेस्ट है हम लोग फटाफट खत्म कर देते थे, so that
बोला ना, बैग में से जितना भी रिवीजन करना है इजी इजी पहले कर दो, तो फिर बाद में एक आध दो बच जाता था, देन वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम ऑन दैट. दैट इज हाउ वी यूज्ड टू, मतलब एट लीस्ट आई यूज्ड टू पर्सनली वर्क. एंड या फिर समथिंग विच इज वेरी हाई, मतलब मार्क्स ओरिएंटेड, विच इज वेरी हाई यस. वेटेज, वो पहले हम फिनिश कर देते थे. देन यूज्ड टू कम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते थे हम लोग. दैट्स हाउ द या अदर स्ट्रेटजी. या वैसा तो अभी भी चल ही रहा है, सो वैसा तो हम लोग कर ही सकते हैं अभी भी. एंड कैसा है, छोटा टॉपिक पहले क्यों उठाते हैं, बिकॉज इट्स लाइक कि कॉन्फिडेंट बढ़ता है कि हाँ एक चैप्टर हो गया, हाँ हाँ सेकंड हो गया, हाँ, ठीक है. लाइक ऐसे चैप्टर्स खत्म हाँ, हो जाते हैं, इजी है. साइकोलॉजिकल. या इजी है तो इजी, बट इट्स फाइन, यू हैव डन इट ना, सो या यू हैव कॉन्फिडेंस इन दैट. सो करेक्ट. वैसा भी कर सकते हैं. लाइक जो लोग, सब लोग अलग, सबका अलग अलग ओपिनियन है लाइक इसमें, कि लोग पहले छोटा चैप्टर लाइक इजी चैप्टर कोई लेता है या फिर कोई हार्ड चैप्टर. सो मैंने हार्ड चैप्टर पहले लिया था. तो या लोग तो छोटा चैप्टर भी ले सकते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, लाइक कुछ भी नहीं है. जैसे ही वो चैप्टर हुआ, यू जस्ट हैव टू डू रिवीजन, हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगा, देन जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. और ऐसे ही बड़ा चैप्टर लिया तो उसको तो 1 आवर तभी जाना है. सो वैसा भी, या इसमें भी दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लोग कैसे भी कर सकते हैं, लाइनमैन लोग करते हैं वैसे. Correct, exactly. And any specific advice on theory papers, because वो ज्यादा ट्रॉमेटिक रहता है बहुत जन के लिए. थियरी पेपर्स में फेलियर भी सबसे ज्यादा रहते हैं. एंड एनी स्पेसिफिक थिंग कि भाई थियरी में सक्सेस कैसे पाना है, कम से कम एग्जाम्शन लेके आ जाने का वहां पर. सो थियोरी नो सीए एग्जाम्स, तो वो सीए आईसीआई वांट्स देयर उनका ही लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल. So it is must कि थोड़ा we just go through the module also. Like yeah, we have classes notes, but it's like कि module भी एक बार glance होना चाहिए. Correct. Like not only for the theory papers but also for the practical also. Like ऐसा है Correct. कि एक बार आग के नीचे से गया ना, तो इट्स लाइक कि हाँ हाश ये भी कवर हो गया करके. बराबर. As you also say ना कि module is a bible for us. So we just can't Absolutely. ignore the module also. We just can't ignore module. So अभी थियोरी पेपर में कैसा कर सकते हैं ना, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें भी जैसा अभी लॉ था, अभी आई डोंट नो पोर्शन ऑफ द इंटर, बट ऑफ द फाइनल्स कैसा था कि लॉ में वी हैव दिस डायरेक्टर चैप्टर्स, जो पूरा बहुत वेटेज है उसका. ठीक है, तो कैसा है कि प्रिपरेशन के वक्त ही पहले ही, एंड वी नो कि उसमें इकोनॉमिक लॉस जो है दैट कंसिस्ट दी 40 मार्क्स, लाइक पूरा 40 मार्क्स उसमें आना ही है. तो मैं कैसा करती थी कि इकोनॉमिक लॉ वी नो कि हाँ 40 मार्क्स का तो आना है, जस्ट फर्स्ट कंप्लीट दैट इकोनॉमिक लॉ, एंड देन आफ्टर कॉर्पोरेट लॉ. सो वैसा 40 मार्क्स अपने हाथ में है ही, एंड कॉर्पोरेट लॉ कैसा है कि वो धीरे धीरे वैसे होना ही है. एंड ये लॉ का एंड ऑडिट का तो ऑडिट में भी इफ यू लाइक फाइनल्स में वी हैव प्रोफेशनल एथिक्स. वी ऑल नो लाइक प्रोफेशनल एथिक्स कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स ओनली. लाइक मैं मार्क्स वाइज जाती थी कि या जो मार्क्स ज्यादा है एग्जाम में आना ही है, वो पहले पढ़ लो अच्छे से. मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम भी ऐसे ही किया था कि नहीं पहले मुझे ये खत्म करना है, बिकॉज ये आना ही है एग्जाम में, एंड बाद में फिर दूसरे कोई जो चैप्टर्स है वो करो. थियोरी में इट्स लाइक जस्ट गो ऑन रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग, लाइक वी जस्ट एंड जस्ट प्रैक्टिस. लाइक अभी इसमें भी कैसा है कि वी हैव टू प्रैक्टिस आर, लाइक हम लोग एग्जाम के पहले कैसे प्रैक्टिस पेपर करते हैं, तो दैट पेपर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गिविंग द मेन एग्जाम्स. तो पेपर प्रैक्टिस में बहुत समझता है कि हम लोग का लैंग्वेज कैसा आ रहा है, या फिर हम लोग बैठ सकते हैं कि नहीं 3 घंटा, लाइक बहुत एक्सर्शन नहीं हो रहा है ना. तो ये सब एग्जाम के वक्त होना इज नॉट हम लोग इतना ये नहीं ले सकते कि एग्जाम के वक्त ये सब हो. सो इट्स जस्ट दैट कि पहले तुम लोग 1 मंथ पहले ही एग्जाम के यू जस्ट प्रैक्टिस पेपर्स. एंड थियोरी पेपर में आई जस्ट एडवाइस की थियोरी पेपर में एटलीस्ट वी प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 पेपर्स, और 2 पेपर भी नहीं होगा तो 1 पेपर, एटलीस्ट 1 पेपर. ठीक है कम मार्क्स आया ठीक है, बट इट्स जस्ट दैट वी नो कि हम लोग किधर रॉन्ग जा रहे हैं, लैंग्वेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है. करेक्ट. तो वैसा भी मतलब या सर प्लीज कंटिन्यू. नहीं मतलब वैसा ही था. एंड मैंने अभी एफआर के वक्त, मतलब मेरा एफआर का जस्ट पेपर था, तो मैंने तभी लाइक इट वाज रॉन्ग. मतलब मैंने क्या किया था कि मैंने 5-6 डेज पहले ही एफआर का पेपर दिया था, लाइक अभी दिसंबर में 5 दिसंबर को पेपर था, एंड मैंने पेपर दिया था 28 नवंबर या 29 नवंबर को कि हाँ चल दे देती हूँ. इट्स लाइक ठीक है देखा जाएगा. बट
I scored like 35. Like I was not pass also कि वो पेपर में मैं थोड़ी डिप्रेस भी हो गई थी, अभी क्या करूँ शिट, अभी 3-4 दिन में एग्जाम है, तो आई नो आई कंप्लीटली, या ऐसा बिल्कुल मत करना एग्जाम में, लाइक एग्जाम के पहले ही यू आर प्रैक्टिसिंग दोस पेपर्स, एटलीस्ट डू दैट 15-20 days बिफोर, और एटलीस्ट 1 month बिफोर, एटलीस्ट प्रैक्टिस योर Correct. पेपर्स। एंड ठीक है, एग्जाम में कम मार्क्स आया प्रैक्टिस पेपर में, दैट्स फाइन, बिकॉज उसमें बट एग्जाम में इतने कम मार्क्स नहीं आते, बिकॉज वी नो, हम लोग को पता है कि हम लोग एग्जाम में बैठे हैं एंड वी जस्ट प्रॉपरली लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं। Yeah, this is what very important. Like I have been suggesting, and very nice that you shared that. It's very very important to write and see theory papers. Theory लिख के यस देखना वो बहुत बहुत important है. And ये हर बार मेरा ये पॉइंट रिएट्रेशन में रहता है कि लोग 10th स्टैंडर्ड एग्जाम के पहले 4 प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं, मॉक एग्जाम देते हैं, और सीए इंटर और फाइनल के बिना, फाइनल के पेपर के वक्त एक बार बहुत कम लोग देते हैं, 2 बार तो बहुत ही मुश्किल है। दैट इज रियली सरप्राइजिंग कि जब भी बंदा 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए 4 मॉक लिखता है और सीए इंटर और फाइनल में मॉक लिखने को ही तैयार नहीं रहता है। दैट्स रियली बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर है, बट आई थिंक फ्रॉम योर coming straight from you, I think will make more impact. नो बट इट्स सर लाइक, मैं भी पहले मैंने पेपर्स नहीं लिखे थे, मैं लिटरली आई जस्ट रिग्रेट दैट, लाइक मैंने पेपर्स नहीं लिखे थे आईपीसीसी के वक्त, मैंने थोड़े लाइक ड्यूरिंग माय सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट, आई एम या आईपीसीसी फोर्थ अटेम्प्ट पास, सो आई एम जस्ट लाइक ऐसा है कि आई जस्ट वांट टू मोटिवेट देम, लाइक जो like fine, it's like you got attempts, that's fine, but it's just that you just learn from that those failure. So मैंने वो ही सीखा कि मैंने तभी कुछ पेपर सॉल्व नहीं किया था, एंड लिटरली अभी मैंने पेपर फाइनल्स के वक्त तो मैंने पूरा पेपर भी सॉल्व किया, अच्छे से सब किया, एंड या मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक यू कैन से लाइक एक एक ग्रुप अलग अटेम्प्ट में दिया, बट इट्स लाइक आई जस्ट क्लियर First दोनों में, attempt you clear. या सो Yeah. इट वाज लाइक Then या very very. या सो मतलब इसमें भी मैंने, इट वाज द मेन कि मैंने लाइक आई जस्ट केप्ट गोइंग, मैंने पूरा पेपर प्रैक्टिस भी किया, जैसे तभी आई नो आई इग्नोर, लाइक मैं पेपर्स पहले नहीं लिखती थी, बट इट वाज लाइक नहीं, अभी तो लिखना ही है पेपर, और अभी तो एक पेपर शायद मैं कुछ लिख नहीं पाई थी, तो एग्जाम का मुझे ये फियर था कि शिट मैंने एग्जाम प्रैक्टिस नहीं किया है, मेरा पेपर कैसा जाएगा, लाइक अकॉर्डिंगली वो दिमाग में आ ही जाता है कि शिट अभी कैसे हो जाएगा, मतलब मैंने पेपर भी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो मेरा मैं पेपर लिख पाऊंगी कि नहीं, एक बार हम लोगों ने पेपर प्रैक्टिस किया ना, तो खुद से यू हैव थिंकिंग, हाँ मैंने पेस का पेपर लिखा है, तो या आई एम, मुझे आ जाएगा एग्जाम में, मुझे टेंशन नहीं लेना है। Correct. Great. Great sharing all this. Thank you for all the sharings and knowledge and experience of yours. And just any final comment as to भाई क्या final एक बोलते हैं last one liner क्या बोलना चाहेंगे So I just related want to say that I just want to say just sir, practice and practice and practice, like just practice, because practice make man perfect. Like if you can't give you don't have time to write the paper, yeah, that's fine, that's okay, but it's like just 3 घंटा सिर्फ निकालो, 3 घंटा निकालो और सिर्फ पेपर लिखो, अगर रिवीजन भी नहीं हुआ है ठीक है, नहीं हुआ है रिवीजन, जस्ट राइट पेपर, we are not writing paper for good marks, we are writing for for us to language आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छे से, मतलब जैसे ही मैंने बोला 3 घंटा बैठ सकते कि नहीं, तो वो अपने लिए है, अच्छे मार्क्स आए नहीं आए वो फर्क नहीं पड़ता है प्रैक्टिस में। सो मेरा वैसा था कि हाँ मुझे भले कम मार्क्स आए हैं, बट इट वाज लाइक वो खुद मोटिवेटिंग फैक्टर था कि हाँ ठीक है कम मार्क्स आया है ना, इससे ज्यादा मार्क्स आएगा अभी मेन एग्जाम में, वैसा ही हम लोग दिमाग में लेके बैठेंगे ना, सो या तो वैसा पूरा जाता है, एंड द मेन इज जस्ट डू स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। अभी जैसे ही मतलब बहुत लेस देन 1 मंथ बचा है एग्जाम के लिए, सो इट्स लाइक जस्ट फोकस, अभी जो एक ग्रुप वाले हैं, एक ग्रुप या 2 ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 ग्रुप वाले हैं, मे बी अभी वो लोग सेकेंड ग्रुप प्रिपेयर कर रहे रहेंगे, बिकॉज अभी एंड ऑफ दी स्टार्ट जब नजदीक आएगा तब वो ग्रुप 1 में जाएंगे,
सो कैसा है कि उसमें भी जस्ट डू दैट जो इम्पोर्टेंट है वो, जैसे क्लासेस में बोला है कि हाँ ये तो एग्जाम में आना ही है, या डू जस्ट एमटीपी एंड पास पेपर्स ऑफ लास्ट 3 years or 4 years. That's very important. That's you can literally, I can say like 20 to 30 marks consist of that only. Like भले ही Very सेम टू सेम सम नहीं आएगा, बट एडजस्टमेंट ना कुछ तो सेम आना ही है, कुछ ना कुछ तो correct. सेम आएगा. एंड पास पेपर्स एंड वो सब अगर करेंगे ना, तो वी नो कि आईसीआई कैसा क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट ऑफ ऑल. Correct. मतलब ये प्रोविजन में कैसा सम आईसीआई पूछ सकता है. लाइक मुझे अभी भी याद है कि जो एमटीपी था टैक्स का, लाइक डायरेक्ट टैक्स का, जुलाई में जब एग्जाम लिखा था डायरेक्ट टैक्स का, उसके पहले मैंने एमटीपी सॉल्व किया था. आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व एनी एमसीक्यू. लाइक एमसीक्यू मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था, बिकॉज इतने लिटरली बहुत ट्विस्टेड एमसीक्यूज थे वो, बहुत ट्विस्टेड. लाइक आई गॉट एवरीथिंग रॉन्ग इन फर्स्ट प्लेस, एवरीथिंग रॉन्ग. बट कैसा था कि वो मैंने प्रैक्टिस किया पूरा, एंड अभी वो एमसीक्यू बुकलेट भी निकले हैं अभी सब सब्जेक्ट्स के लिए, Correct. जिसमें एमसीक्यूज Yes. आते हैं. सो कैसा है, वो भी कैसे एक बार खुद से सॉल्व करेंगे ना, तो वी नो कि हाँ ये आ रहा है. एटलीस्ट एक बार बट सॉल्व किया ना, तो दैट्स एग्जाम के वक्त याद आ ही जाता है वो, हाँ कि मैंने ये सॉल्व किया था, हाँ मुझे याद है ये ऐसे सॉल्व किया था, एंड ऐसा ये इसका ये प्रोविजन आएगा, या वॉट एवर इट इज. Correct. Anyway, thanks a lot, Dhani. Thanks a lot for this, and I hope your questions are sorted. किसी का और कुछ questions है, you can ask. We are there या for another एनीवन. time. Any या questions you have, you can put it on the chat box and ask her. So you directly get the answer from her, and would like to help you in the best possible way. So Yeah, I she's am free to help. I am free to help. You can, you can message me also, like on Insta also, if you are not available right now. Anything, like you have any queries or anything, you can contact me. That's fine. great. So that freedom you have. So one more advantage of doing things in a easier and smarter way. So get in touch for whatever is, and any doubt you have, please do ask. Any questions you can ask. If not, then we'll wish you all the good luck. And Dhwani has joined after a long office day, tiring day, so will not take much of her time also. Yeah. Thank you, Vidya. Yeah, Yeah. all the very Vidya, best to all the CA students, and don't take tension at all. Like टेंशन आता है, बहुत आता है. मैं घर पे बोलती थी मम्मा बहुत टेंशन आ रहा है, मैं क्या करूँ. तो इट वाज लाइक कि ठीक है, लाइक इट वाज लाइक कि ठीक है सो जा, कुछ नहीं, कल नेक्स्ट डे आना ही है. बट एक बार अभी कैसे, अभी सीए आ गया, अभी आ गया, तो इट्स लाइक कि हाँ बस हो गया, जो था वो हो गया. सो टेंशन आना इज वेरी कॉमन. तो पूरा इतना दिमाग में लेना एंड तो खुद को ही बीमार करना, तो दैट्स नॉट ओके. सो या हेल्थ एंड सब ध्यान रखना. एंड या ऑल द वेरी बेस्ट. एंड कुछ भी रहा तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी और कॉन्टैक्ट शिवा सर, एनीथिंग, फ्री yeah. टू आस्क. Yes, absolutely. So best wishes, and thank you, Dhani. Thank you very much. Yeah, thank you so much, sir. Have a good day. Bye Yeah, bye. bye, 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 everyone. Bye. Yeah, bye.